I bring greetings to you from Tabernacle Ministry International. That's ministry. That's my ministry. और टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल की ओर से आप सभी को सलाम। वो मेरी मिनिस्ट्री है जो मैं And you चलाता can हूँ। find me on YouTube, on Facebook, and we have our own site, tabernacleministryinternational.com. और आप मुझे फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप पा सकते हो टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल इस चैनल के द्वारा या फिर इस पेज के द्वारा। और हमारा खुद का भी साइट है जो है tabernacleministryinternational.com। And you can enjoy unlimited messages. और वहाँ पर अनगिनत मैसेज के आप संदेश के आप लुत्फ उठा सकते हो। Amen. आमीन। हालेलुया। So today is the last part of this entire series. That's the anointing. तो अभिषेक की श्रृंखला का आज आखिरी भाग है। And I believe and I trust और मुझे विश्वास और भरोसा है that today all of you will have a glimpse of the experience of the anointing of the Holy Spirit. कि आज आप सभी जन एक झलक उस अभिषेक का या फिर उस अभिषेक का अनुभव आप आपकी जिंदगी में लोगे। So we have been seeing that how to pray. We have seen various stages of prayer, various levels of prayer, kinds of prayer, everything we have seen. और हमने दुआ के अनेक प्रकार देखे कि किस क्या क्या स्तर है दुआ में या फिर कौन कौन से प्रकार है दुआ के, ये हमने देखे। And today we are in the concluding part, and that is the anointing. और आज हम आखिरी भाग में हैं और जिसका विषय है अभिषेक। First of all, what is the anointing? सबसे पहले अभिषेक है क्या? The word comes from the Hebrew word, and that is called as mashak. और ये जो शब्द है अभिषेक, ये इब्रानी शब्द से आता है जिसका नाम है मशाक। Now, what does mashak mean? अब मशाक का अर्थ क्या है? It means to rub or to smear. इसका मतलब ये है कि रगड़ना या किसी के ऊपर पूरी तरह से फैला देना या घिसना। या फिर घिसना। Now, I'll give you a small demonstration here. और यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कृति करके दिखाता हूँ। Can I have my dear brother once again, like always? क्या हमेशा की तरह हमारा जो पसंदीदा भाई है, क्या आप यहाँ पर आओगे? And I'm going to ask him a few questions after doing a particular action, and he will tell you exactly what happens. और मैं कुछ कृति करने वाला हूँ और उसके बाद उन्हें कुछ सवाल मैं पूछने वाला हूँ और वो हमें बताने वाले हैं कि क्या होने वाला है। So you can understand exactly what is the anointing. तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि अभिषेक क्या है। Watch everybody carefully. सभी हम ध्यान से देखो। I'm just doing a simple process. बस एक आसान सा कार्य में यहाँ पर कर रहा हूँ या प्रक्रिया में कर रहा हूँ। And this process we often do, but we really don't know what exactly is happening. और ये जो कृति है हम अक्सर करते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है। Now watch everybody carefully. आप सभी हम ध्यान से देखो। Brother, are you feeling hot all over your palm? भाई आपके हाथों पर क्या आपको गर्म महसूस हो रहा है? Yeah. Okay. हाँ। Let me go increase the speed now. अब मैं रफ्तार को बढ़ा देता हूँ। Okay. Now, what are you feeling? अब क्या महसूस हो रहा है? Okay. आधा सा कर. Is your hand vibrating? Fingers shivering? क्या आपके उंगलियां जो है वो कांप रहे हैं? Okay. Had I kept on doing, what would have happened to your hand? अगर मैं ऐसे ही करते रहता तो आपके हाथों को क्या होता? Right? This is called anointing. वो कह रहे हैं कि ये और कांपता और गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी को अभिषेक कहते हैं। Amen. Write it down if you're taking up notes. Thank you very much. अगर आप लिख रहे हैं तो आप ये लिख सकते हो। So, anointing is actually rubbing or smearing or rubbing the Holy Spirit rubbing Himself upon us. तो अभिषेक ये है कि पवित्र आत्मा जो है वो खुद उसको हम पर वो घिसता है या फिर रगड़ता है। Yeah. Now, this is something very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। If you are a believer in the Lord Jesus Christ, अगर आप मसीह पर विश्वास रखते हो, And उसके if- हिसाब से चलते and हो if you really want to grow in God, और अगर आप सचमुच परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, anointing is the key. तो अभिषेक जो है यही चाबी है। Without anointing, अभिषेक के बगैर you can never grow in God. आप परमेश्वर में बढ़ ही नहीं No सकते। matter how much you read the Bible, no matter how much you pray, if the Holy Ghost doesn't come in your prayer time and doesn't touch you, you're not going to grow. अब चाहे फिर अगर आप कितने भी बाइबल क्यों ना पढ़ लो या फिर कितना भी दुआ आप क्यों ना कर लो, अगर पवित्र आत्मा आपके दुआ में आकर आपको छूता नहीं तो आप परमेश्वर में बढ़ोगे ही नहीं। How many remember when Moses came down from the mountain, his face was glowing. कितने जनों को याद है कि जब मूसा जब पर्वत से नीचे उतर आया उसका चेहरा जो है वो झलक रहा था। Amen. Amen. Why was that? ऐसा क्यों हुआ? Because he was having a close encounter with God Almighty. क्योंकि उसकी मुलाकात जो है सर्वसामर्थी परमेश्वर के बहुत ही करीबी मुलाकात ऐसी हुई थी। And God was rubbing Himself upon him. और परमेश्वर खुद उस
पर वो खुद को घिस रहा था। And when you stay with और God जब आप परमेश्वर के साथ रहते हो for long hours, बहुत कई घंटों के लिए, your body, not only your life, but also your body will reflect God. आपकी जिंदगी ही नहीं लेकिन आपका शरीर जो है उसके द्वारा भी परमेश्वर दिखाई देगा। Amen. Amen. How many have been into a mall where they sell perfumes? Anybody? कितने लोग ऐसे मॉल में गए हैं जहाँ पर वो परफ्यूम बेचते हैं? Amen. Amen. And when you walk through that perfume section for some time, you just roam around there. You also start smelling all that perfume. You come out, you get a free fragrance और all over your body. जहाँ पर वो परफ्यूम बेच रहे हैं, अगर उसी जगह पर अगर आप थोड़ी देर घूम लो तो वहां से अगर आप बाहर आ जाओगे, आप मुफ्त में आपके शरीर पर भी वो परफ्यूम का जो सुगंध है वो लग जाएगा, And free of cost. और वो भी मुफ्त में। And that too multiple perfumes. You will smell I don't know what, like, you know. और वो भी अनेक अलग अलग प्रकार के परफ्यूम, और आपके ओर से क्या सुगंध आएगा वो पता नहीं। Now listen, everybody. आप सभी सुनो, Is the Holy Spirit working? Is the working of the Holy Spirit new in the body of Christ? क्या पवित्र आत्मा का जो कार्य या जो काम है, क्या वो मसीह के शरीर में नया है? Is it the New Testament only? Can we say only the New Covenant? क्या हम उसे केवल नए करार में ही देख सकते Let's हैं? open our Bibles to Exodus 25, everybody. आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे, निर्गमन इसका 25वां And अध्याय, if you read from verse 1 onwards, और अगर आप वचन 1 से आगे पढ़ोगे you'll find that God is telling the nation of Israel through Moses that you make a candlestick for God. और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है मूसा के द्वारा इस्राएल राष्ट्र को ये बता रहा है कि परमेश्वर के लिए दिवट बनाने के लिए। Now, to save time, I'm not going to read that. और समय बचाने के लिए मैं वो पढ़ने वाला You नहीं can हूँ। go home and read it. That's your homework. आप घर जाके आप उसे पढ़ सकते हो, ये आपका होमवर्क है। Now, listen, everybody. आप सभी लोग सुनो। But if you read verse 31, लेकिन अगर आप वचन 31 को पढ़ोगे, he's saying over here, वो यहाँ पर कहता है, and thou shalt make a candlestick of pure gold, of beaten work shall the candlestick be made. His staff and his branches, his boughs, his knobs, and his flowers shall be of the same. फिर चौके सोने की एक दिवट बनवाना, सोना डलवाकर वह दिवट पाए और दंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। Yeah, that means they had to take one big piece of gold. इसका मतलब है सोने का एक बड़ा टुकड़ा उन्हें लेना था, They could not join other parts of gold. और सोने के अलग दूसरे भाग जो है वो उसे जोड़ नहीं सकते थे, They had to take that one piece of big gold लेकिन सोने का एक ही बड़ा टुकड़ा लेना था and start hammering it, heating and hammering, and give it a shape of 7 candlesticks. और उसे गर्म कर कर मार मार कर उसके एक दिवट बनाना था। Now सात listen. समय Now listen. आप सुनो, This 7 candlestick, they say the word over here, used over here is और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो ये है, his shaft, the main shaft is. और उसके दंडी, Yeah, his bow. I don't know what he's saying. उसका, His branches, उसके पुष्पकोश, उसके गांठ, his boughs, उसके फूल, his knobs, उसके सब कुछ, his flowers. और उसके फूल। So there, the word here is referred as his, means a person. और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है उसके, इसका मतलब एक व्यक्ति। So that means इसका अर्थ यह है, it's not saying its shaft, its branches, its boughs, its knobs, its flowers. और यहाँ पर हिंदी में ऐसा नहीं कहा गया कि किसी वस्तु के बारे में, Yeah. लेकिन किसी इंसान के बारे में कहा गया, इंसान किसी नहीं। व्यक्ति के बारे में कहा गया है। Yeah, so actually here they are talking about the Holy Spirit. और देखा गया तो यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। At the time of Moses, मूसा के वक्त, when Moses was taking the plan, the tabernacle, the plan of the tabernacle of God. और जब मूसा जो है वो निवास मंडप का जो पूरी योजना जो परमेश्वर ने उसे दिया था वो लेकर वो चल रहा था। Can someone read Exodus 25 verse 8, brother? और क्या कोई निर्गमन इसका 25वां अध्याय वचन 8 पढ़ सकता है? Exodus 25:8. If anybody can read in Marathi, can found it out, read it loudly, please. निर्गमन इसका 25वां अध्याय वचन 8। Come on. मी त्यांच्यामध्ये निवास करावा हा. म्हणून त्यांनी माझ्यासाठी एक पवित्र स्थान तयार करा. Correct. मी त्यांच्यामध्ये निवास करावा म्हणून. So the plan of God is that I want to dwell amongst my people, so build for me a tabernacle. तो परमेश्वर की योजना ये है कि वो हमारे बीच में निवास करे, इसलिए उसके लिए एक
पवित्र स्थान या निवास मंडप बांधना था। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? And in this tabernacle there are, three parts. और इस निवास मंडप में 3 भाग है। The first one is the outer court. पहला है बाहर का जो पटांगन है वो, या बाहर का जो पटांगन है। The second one is the holy place. दूसरा है पवित्र स्थान, And the third one is the holy of holies. और तीसरा है परम पवित्र स्थान। Now the holy place has 3 vessels. और पवित्र स्थान में तीन वस्तुएं रखे या पात्र रखे हैं। The first one, as you enter in, और पहला, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हो, you have on the 7 candlesticks. और वो 7 समय है, Right, bang opposite you have the table of shewbread. और उसके ही सामने वो मेज रखा हुआ है, And then right in the front you have the altar of incense. और उसके सामने धूप वेदी है, And beyond that is the holy place, the holy of holies. और उसके आगे परम पवित्र स्थान है, And where you have the ark of the covenant. और जहाँ पर करार का कोष रखा हुआ है। And outside in the outer court और बाहर के पटांगन में we have 2 vessels. वहाँ पर 2 चीजें रखे One is a हैं, brazen altar and the second is a brazen laver. और एक है पितृ वेदी जिसे कहते हैं, या फिर और दूसरा है But लेकिन the most important vessel in the entire I can say the whole tabernacle लेकिन उस पूरे निवास मंडप में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है या फिर जो वस्तु है वो ये है, that is the 7 candlesticks. वो है 7 समय, Because they speak of the Holy Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। And the instructions of the Lord were, और परमेश्वर की ओर से जो नियम दिए गए थे वो ये, आदेश दिए गए थे you वो ये are है, not going to light the candlestick with any fire, any external physical fire. और परमेश्वर की ओर से जो आदेश थे वो बहुत ही साफ थे कि बाहर की अग्नि उसे नहीं लगाएंगे। The fire to light the candlestick will come from heaven above. और उस 7 समय को जलाने के लिए जो उस अग्नि की जरूरत है वो स्वर्ग से नीचे आएगा। Aaron's son tried it और उनके बेटों ने ये कोशिश की थी, and they died on the spot. और वो जगह पे ही मर गए। So तो that is the Holy Spirit. You cannot mess with the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा के साथ हम गड़बड़ी नहीं कर सकते। Now listen everybody. आप सभी लोग सुनो, Now this is something very important. ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। In the holy place there are no windows. देखो, पवित्र स्थान में कोई खिड़कियां नहीं है, There are no windows. कोई खिड़की नहीं। So the only light that the priest would have to minister in the entire holy place, and that was the light from the 7 candlesticks. तो याजक को उस पवित्र स्थान में सेवकाई करने के लिए जो प्रकाश की जरूरत थी वो केवल और केवल वो 7 समय से ही आता था। Yeah. If the 7 candlesticks are not on, अगर वो 7 समय जले हुए नहीं है, they cannot do any service at the table of shewbread or at the altar of incense. तो फिर उस मेज के पास और उस धूप वेदी के पास वो कुछ भी सेवकाई नहीं कर सकते। The table of shewbread speaks of the word of God. और वो जो मेज जो वहाँ पर है वो पवित्र बाइबल के बारे में या शास्त्र वचन के बारे में दर्शाता That है, to Rhema. और वो भी रेमा। And और the altar of incense speaks of praise, और धूप वेदी जो है वो इसके बारे में दर्शाता है, वो है स्तुति, prayer, दुआ and worship. और फिर आराधना। Not praise and worship and prayer, और स्तुति आराधना और दुआ नहीं, but praise, लेकिन सबसे पहले स्तुति, prayer, उसके बाद दुआ, and worship. और आखिर में आराधना। Why worship at the last? और आराधना आखिर में क्यों? We take worship as singing songs, slow songs. और हम आराधना को इस प्रकार से लेते हैं कि धीमे गाने जो है वो हम गाते हैं। Yeah, but let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दो, worship means telling God who He is. आराधना का मतलब ये है कि हम परमेश्वर से ये कहते हैं कि वो कौन है। Praise is thanking God for what He's done. और स्तुति जो है वो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो उसने हमारे लिए किया है। Amen. आमेन। Praise are of 2 kinds basically. और स्तुति जो है वो 2 प्रकार के हैं। One is man to man. एक है इंसान से इंसान तक। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें. This is man to man. ये जो गाना है आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, ये इंसान Many से songs. इंसान तक। I'm not so good in songs, so forgive me. और ऐसे बहुत सारे गाने हैं और मुझे माफ कीजिए, गानों में मैं अच्छा नहीं हूँ। But लेकिन then there is praise unto God. लेकिन उसके बाद है परमेश्वर की और स्तुति। Yeah, when I say I will enter His gates, so this is the day that the Lord has made. These are songs where I sing unto God. जैसे कि उसके पाठ को मैं प्रवेश करूंगा और ये दिन यहोवा ने बनाए, ऐसे जो गाने जो हम परमेश्वर के लिए गाते हैं वो ऐसे है जो इंसान से परमेश्वर तक। Yeah, stuti, that is praise. वो स्तुति है। But then worship लेकिन
लेकिन आराधना जो है, is actually, in my definition, is loving God. और मैं उसे कहता हूँ कि परमेश्वर से प्यार करना। Yeah, when you get lost in God, जहाँ पर आप परमेश्वर में खुद को भूल जाते हो, when you forget time. जहाँ पर आप समय भूल जाते हो। Arey, I have to go, yaar, bus is waiting. You forget all these things. अरे मुझे जाना है यार, बस मिलने वाली है, ये सब कुछ आप भूल जाते When हो। you get lost in the love of God, जहाँ पर आप परमेश्वर के प्यार में खुद को भूल जाते हो, खो जाते and हो, God starts, filling you up. और वहाँ पर परमेश्वर आपको भरने लगता है। That is worship, इसे कहते हैं आराधना, which is born only after prayer. जो दुआ के बाद ही वो पैदा होता है। Yeah, now listen everybody. आप सुनो, सभी जन सुनो। So, तो when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है, you will feel some things all over your body. आपके शरीर पर आपको कुछ ना कुछ महसूस होगा ही। Okay, my question is, ठीक है, मेरा सवाल ये है, if I take a live wire, अगर मैं एक वायर ले लूं हाथों में जो चालू है, electricity is flowing, और उसमें से बिजली बह रही है, and I touch you, और अगर वो लेके मैं आपको छूता हूँ, what will happen? तो क्या होगा? Will you be standing like this? क्या आप ऐसे खड़े रहोगे? No, certainly not. What will you be doing? नहीं नहीं, आप क्या करोगे? You'll be thrown away. आप फेंके जाओगे, And if it's a battery current, और अगर वो बैटरी का करंट है, you'll be stuck in love with that thing. तो आप उसके प्यार में उसके साथ जुड़ जाओगे। I'll never forget this day in my life. और ये मेरे जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। We had finished our Sunday service, हम संडे के जो सर्विस है वो खत्म हमने किया था, and I was very tired. और मैं बहुत थक गया था। And I can't explain how tired I was. I just can't explain that to you. मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना थका हुआ था। And one of the boys, I have an inverter at my house, 2 big truck batteries, big batteries. और मेरे घर पे इन्वर्टर है, और उस इन्वर्टर को चलाने के लिए ट्रक के 2 बड़े-बड़े बैटरी मैंने घर पे लगाए हैं। And one of the boys had changed the connection. और एक लड़के ने कनेक्शन को अदला-बदली कर ली। Where the inverter should go into the mains, it was going somewhere else, and it was a big thing. At 2 o'clock nights went. और जहाँ पर इन्वर्टर का जो प्लग है वो मेज में डालना था, उसे छोड़ वो कहीं और उसने लगा दिया था, और इन्वर्टर का वायर कहीं और लगा दिया था, और रात के 2 बजे बिजली चली। That great man is sitting right here today. और वो मान में कब्र जहाँ पर हमारे देश में बैठा। And 2 o'clock in the morning, I got up. I said, "Why it's so hot?" और सवेरे 2 बजे में उठा, और मैं ये कह रहा था इतना गर्मी क्यों हो रही? And in my sleep, I went to see the inverter. It was not working. I said, "Who is this great person?" I was thinking of it. और मेरे नींद में मैं वो इन्वर्टर के पास देखने गया कि क्या ये जो चालू नहीं है, और ये कि कौन सा मान कि उसने क्या किया है। Got the iron stool. और वहाँ पर लोखंड का एक स्टूल में ले आया। I was in my complete sleep. I was only 20% awake. Okay. और मैं नींद में ही था, केवल 20% शायद मैं जागा होगा। I stood up the stool. और उस लोखंड के स्टूल पर मैं खड़ा हो गया, I removed the plug just connected the inverter, और जो प्लग इन्वर्टर में लगा हुआ था वो मैंने निकाल दिया, and I took the other plug, और मैंने which goes, into the whole connection. और मेरा दूसरा प्लग जो है वो पूरे कनेक्शन में था, वो मैंने उठा लिया, I put it inside, वो मैंने अंदर डाल and दिया, I just got the plug. और मैंने of the बस inverter. और इन्वर्टर के प्लग को मैंने बस पकड़ लिया, And I was there. It was hallelujah. It was praise the Lord. I got 100% awake, and then it began to fall off. It was all over. और मैं वहीं पर था, सब कुछ हालेलुया, सब कुछ प्रेज द लॉर्ड था, और वहीं पर अटका हुआ था, और उसके साथ मैं प्यार में गिर गया था, और मैं वहां से गिरने वाला था। I was shaking and I was wondering what's happening. मैं पूरी तरह से हिल रहा था, और मैं ये सोचता था क्या हो रहा है। That time I had hair, और उस वक्त मेरे बाल थे, and I could feel my hair burn, और मैं ये महसूस कर रहा था कि मेरे बाल जो है वो जल रहे हैं, and I could feel, that something is happening with me. और मैं ये महसूस कर रहा था कि मेरे साथ कुछ तो हो रहा है। I couldn't even pray. It was so powerful. और वो इतना सामर्थ्य था कि मैं उस वक्त दुआ भी नहीं कर पा रहा था। 2 truck batteries, 2 huge truck batteries, full power. ट्रक के 2 बड़े-बड़े बैटरी, और उसका पूरा पावर जो है उसमें मुझ में बह रहा था। Grace of God, God had mercy on me. I don't know how I was thrown back, and I went and sat somewhere. I don't remember where, and I was shivering in my bones. और सच में परमेश्वर की कृपा है, मैं कैसे न कैसे उसमें से छूट गया, और बाद से मैं हिल गया, और कहीं तो जाके मैं बैठ गया, Yeah, I was shivering in my और bones. मेरे हड्डियों तक मैं कांप रहा And I था, said, "It's in the bone. It's in the bone." और मैं ये कह रहा था कि वो हड्डी में है। After 1 week, Sunu comes in, और 1 हफ्ते के बाद सुनो वहाँ पे आता है, and he starts fidgeting with the same thing. और वो उसी चीज के साथ खेलने The लगता है। moment I see him
just going to the inverter, और जैसे मैं उसे इन्वर्टर के पास जाते हुए देखता हूँ, I get the shock once again. I'm not connected. I'm sitting. I'm just sitting. My brain gives me another shock. और वो बिजली की करंट जो है वो मुझ में फिर बहती है। मैं वहाँ पे गया भी नहीं, उसे छुआ भी नहीं, लेकिन मेरा जो दिमाग है वो मुझे पहले से करंट दे रहा है। You know, that's how what happens when you get involved with power. और यही होता है जब आप सामर्थ के साथ घुल मिल जाते हो। Amen. Can I hear a loud amen? So people of तो God, परमेश्वर के लोगों, yeah, come on. How is it possible? You call the creator of the entire universe. He comes and he touches you and nothing is going to happen. चलो कैसे क्या संभव है? सोचो, जो इस ब्रह्मांड का निर्माता है वो आप उसे बुलाते हो, वो आता है, वो आपको छूता है और कुछ भी नहीं होगा। Turn to somebody and say it's not possible. चलो किसी के पास मुड़कर उनसे ये कहो कि ये संभव ही नहीं। Oh no, it's not possible. ये संभव नहीं। Turn to somebody and say it's not possible. ये संभव ही नहीं। Yeah, because whenever you pray, you're praying to a God who made the entire universe, this electricity, everything. और जब कभी भी आप दुआ करते हो, आप ऐसे परमेश्वर की ओर दुआ करते हो जिसने ये ब्रह्मांड को बनाया, जिसने इस बिजली को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया। Can I just share a bit something about the wisdom of God? क्या मैं परमेश्वर के ज्ञान के बारे में कुछ आपको बता सकता हूँ? Amen. Many times anybody seen lightning? क्या कभी किसी ने बिजली को कड़कते हुए देखा है? Amen. Amen. I also had a wonderful experience. I won't tell you that about lightning. और बिजली का भी अद्भुत मेरा एक अनुभव है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीक कभी। Someday. Now, कभी बताऊं। I often wondered मैं हमेशा सोचता था why there's so much of lightning going on everywhere. कि हमेशा बिजलियां यहाँ वहाँ क्यों कड़कती रहती? What is the purpose of this? इसके पीछे का मकसद क्या है? So one day I was watching a program on Discovery, और एक दिन मैं डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम देख रहा था and he said और उन्होंने कहा that above our Earth कि हमारे पृथ्वी के ऊपर there is a zero zone, वहाँ पर एक जीरो जोन है and this zone is very crucial for us. और ये जो जोन है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Why? क्यों? Because in this zone our satellites roam around, क्योंकि इस जोन में हमारे जो सैटेलाइट है वो घूमते हैं and और this zone actually has to be kept completely radiation free. और इस जोन को रेडिएशन से मुक्त रखना है। Yeah, always. हमेशा, Because if it doesn't happen, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो the solar rays that come, जो सूर्य के किरण जो आते हैं they will cook us up. वो हमें पका देंगे। Yeah. हाँ, Actually cook us up. सचमुच पका देंगे। Now who cleans this? अब इसे साफ कौन करता है? Lightning. बिजली। Lightning. Bijli. What is it? आसमान जो बिजली कड़कती है वो। Correct. Yeah, lightning. आसमान में जो बिजली कड़कती है वो। Because the lightning that strikes on earth क्योंकि जो बिजली धरती पर गिरती है is actually the lower part. It's actually I can say the lower part of the lightning. वो उस बिजली के निचला भाग है, वो है। But the root of the lightning, लेकिन जो उस बिजली का जो जड़ है या मूल है, it flares more up into that layer वो उस जोन में ज्यादा वो पनपता है या ज्यादा फैलता है and cleans up the entire zero zone और उस जीरो जोन को पूरी तरह से साफ करता है all the year round. पूरे साल भर। Why? क्यों? So that you can watch Tata Sky, you can watch Videocon, you can watch Airtel, God's plan. ताकि आप टाटा स्काई देख सकते हो, एयरटेल देख सकते हो, वीडियोकॉन देख सकते हो, परमेश्वर की योजना है। Can you imagine we enjoy a telecast of cricket matches and news and so many soaps and operas and we don't even know how this happens. और हम तो जो क्रिकेट मैच है ये हम लाइव देखते हैं और बहुत सारे सीरियल देखते हैं, सोप्स ओपेरा ये सब कुछ देखते हैं, हम सोचते भी नहीं ये सब कुछ होता कैसा है। It's the satellites that work, freely there. और ये वो सैटेलाइट है जो वहाँ पे आराम से घूमते हैं। But who makes it happen? लेकिन कौन इसे ऐसा होने देता है? The Lord Almighty. सर्वसम्मति So परमेश्वर। you and I, when we pray, तो आप और मैं हम जब दुआ करते हैं we just stand like this. हम बस ऐसे खड़े हो जाते हैं That we are just calling on to nobody. कि हम किसी को भी नहीं पुकार रहे हैं। Come on. चलो When you go to your house,
जब आप आपके घर में जाते हो, when you talk to your father, your mother, जब आप आपके माँ बाप से बात करते हो, husband, wife, children, anybody, पति पत्नी बच्चे किसी के साथ भी, there always has, a reply coming to your question or your answer, whatever it may be. देखो आपके सवाल जवाब को सामने से एक प्रतिक्रिया आती ही है। Amen. Amen. Whenever you are, whenever you're in love with somebody, जब कभी आप किसी के प्यार में गिरते हो, imagine brother, you are in love with someone. कल्पना करो भाई आप किसी के Come here, प्यार I'll में say हो। it. I'll use one. Come here. Imagine you're in love with someone. कल्पना करो आप किसी के प्यार में हो या फिर सच में हो, And you're walking with her in the garden. और आप उसके साथ गार्डन में चल रहे हो, And you try to catch your hand. Try to catch your hand. Catch my hand. Imagine your wife is like this. कल्पना करो आप catch your ये hand. जो है ऐसे है और आप उसके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, बस बगीचे में आप उसके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, Just walk. Just walk with me. बस चल रहे हो, हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। No. नहीं. ये मतलब पकड़ते. How will you feel? आपको कैसा महसूस होगा? Are you touching me? You can't walk properly. तो बुरा महसूस होगा, लेकिन आप मुझे छू क्यों रहे हो? आप ठीक से चल नहीं सकते हैं ना? आपको क्या बगैर छुए चल नहीं पाते नहीं? How will you feel if she says that this to you? अगर वो आपको ऐसे कहेगा, आपको कैसा लगेगा? क्यों बुरा लगेगा? वाइफ ने किधर बोला? वाइफ बोला ही नहीं। तो शादी भी कर लिए। वहाँ से रात तक शादी तो हो गई। आपको बुलाया भी नहीं। बेटा कौन भी? Tell me, come on. How will you feel? Why do you feel bad? चलो मुझे बताओ कि आपको बुरा क्यों महसूस होगा? प्यार करते इसलिए। अरे टचिंग करने को क्या है प्यार में? Come on, is my question valid? Is it right or is it right? चलो क्या मेरा सवाल सही है या मेरा सवाल सही है? प्यार में टचिंग का क्या मतलब होता है? प्यार करते तो मुंह से करो ना। हाथ से क्या? Walk properly. ढंग से चलो। कुत्ते को भी अगर आप प्यार करें, लोग वो आपको टच करते हैं, चाटेगा। आमीन। Because it's the universal language of God. क्योंकि परमेश्वर की ये जागतिक भाषा ही है। Whenever you love someone, जब आप किसी से भी प्यार करते हो, होता है, this touch happens. ये जो छूना है होता ही है, Because it's love. क्योंकि यहाँ पर प्यार है। Amen. Amen. You need to walk hand in hand. और फिर हाथों में हाथ डाले अब चलते हैं। Amen. My point is, मेरा सवाल ये है, the Lord who loves us so much, He gave His only begotten Son. जो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसका एक लौता बेटा उसने हमारे लिए दे दिया। And when we pray और जब हम दुआ करते हैं and we stand before Him, और जब हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं, He's not going to touch you. क्या वो आपको छूने वाला नहीं है? जिसके लिए अपना एक लौता बेटा दिया, जिन लोगों के लिए दिया, मौत से गुजर गया, जिंदा हो गया, इतने कोड़े खाए, सब कुछ किया, वो ऐसे ही बैठेगा आपके सामने आके, हाँ बोल क्या चाहिए? No, नहीं। prayer for you and me may be a shopping list, देखो दुआ आपके लिए और मेरे लिए शॉपिंग लिस्ट होगा, but for God लेकिन परमेश्वर के लिए it is union. वो है एक होना। Amen. Amen. For the very reason why He sent His only begotten Son, and it is union, and that's why He comes and wants to touch you. और इसी कारण तो उसने उसके एक लौटा बेटा जो है उसने हमारे लिए दे दिया, और वो है कि हम उसके साथ एक हो जाएं, और जब हम दुआ करें वो आकर हमें छू सकता है। Amen. But there's some people who say, Pastor, God never touches me. लेकिन कुछ लोग कहेंगे पास्टर परमेश्वर हमें छूता ही नहीं। अरे काय को वो आके ऐसे खाली पीली छुएगा? He's not to खाली पीली, come take. No. वो खाली में जाके नहीं करो, ले। As people of God, you need to value that touch. लेकिन परमेश्वर के लोगों को जो छूना है उसका हमें मोल रखना है। Amen. I've seen people who come new to God and God touches them like this. मैंने देखा है कि लोग जो है नए परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर उन्हें ऐसा ही छूता है, On the first day itself. पहले ही दिन छू लेता है। And they're rolling in the whole church, they're crying and they're shivering under the power of God. They don't know what's happening over there. और कलीसिया में दिन पर यहाँ वहाँ वो गिरते रहते और रोते रहते और कांपते रहते, उन्हें पता भी नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। And if you ask them what's happening with you, और अगर आप उनसे पूछोगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, they say, I don't know what's happening with me. I don't know what's happening with me. मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हो रहा है। People know why? क्योंकि आपको पता है क्यों? Because God has special grace on such people. क्योंकि ऐसे लोगों पर परमेश्वर विशेष कृपा करता है, अनुग्रह करता है। But I've seen such people only लेकिन मैंने ऐसे ही लोगों को देखा है who don't come to church afterwards. जो बाद में कलीसिया को आते ही नहीं है।
But people who strive for the touch, लेकिन जो लोग उस छूने के लिए झगड़ते हैं, yeah, they pray, they fast, वो दुआ करते हैं, उपवास करते हैं, they don't leave the church no matter what happens. चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे लोग कलीसिया को बिल्कुल नहीं छोड़ते। Why? क्यों? Because they value, they have earned that anointing. क्यों? क्योंकि उन्होंने कीमत अदा की है वो अभिषेक ग्रहण करने के लिए। Why? What is the price they paid? और क्या कीमत उन्होंने अदा की है? Fasting and prayer. उपवास और प्रार्थना। But the biggest price is paid by the Lord Jesus Christ by His blood. लेकिन सबसे बड़ी कीमत अगर अदा की है वो प्रभु यीशु मसीह ने की है उसके लहू के द्वारा। Amen. Amen. So point number 1 was, तो मुद्दा क्रमांक 1 था, without the Holy Spirit, your prayers are पवित्र आत्मा के बगैर आपके दुआएं जो है If the Holy Spirit doesn't come in your prayer time, अगर आपके दुआ के वक्त पवित्र आत्मा नहीं आता your prayers have not begun. तो आपके दुआ जो है वो शुरू ही नहीं हुए हैं। Yeah, no matter how much you shout hallelujah, no matter how much you shout praise the Lord, no matter how much you say Yeshu Rakte Jai and all that stuff, you dance and sing and jump and do so much sorts in the air, it is of no use because the Holy Ghost does not come. और फिर चाहे आप कितने भी चिल्लाओ, कितने भी चीखो और कितने भी नाचो, गाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु रखते जय करो या फिर हवा में कूदी लगाओ या कुछ भी करो, अगर पवित्र आत्मा वहां पर नहीं आया है तो आपकी दुआ जो है वो शुरू ही नहीं हुई। Till the 7 candlesticks are not on, जब तक वो 7 समय जलते नहीं, the prayer doesn't begin. दुआ शुरू नहीं होती। So the Holy Ghost is necessary तो पवित्र आत्मा बहुत ही जरूरी है for your prayers to start. ताकि आपकी दुआ जो है वो शुरू हो जाए। Amen. Amen. Now can you imagine अब क्या आप कल्पना कर सकते हो how many times we just pray and run? कितने बार तो हम बस दुआ करते दौड़ते, That just run away. बस दौड़ के चले जाते हैं। We are late for office, run. हम ऑफिस के लिए देर हो गए, भागो। Sometimes I really thank God I am not God कभी कभी मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ। because I would have killed everybody on the way. नहीं तो मैं मार के सबको मार देता। Why? क्यों? अरे मेरे को ऐसे ही इज्जत देते, ऐसा टाइम दिया मेरे को, खलास करो इनको. But no, God is loving. लेकिन नहीं, परमेश्वर जो है वो बहुत प्यार करता है। He gave like Adam so many times हम कितने तो बार आदम की तरह बर्ताव करते हैं before getting the wife. और पत्नी मिलने से पहले कैसा भाई को मिला? पत्नी मिलने से पहले परमेश्वर परमेश्वर और जैसी पत्नी मिली खत्म. बस सब खत्म। People of God, परमेश्वर के लोग, I wish I was God. काश मैं परमेश्वर। मेरे को बोलता है तेरा क्या करने का मेरे को मालूम. You know, think when Adam was eating the fruit, God would have come there. सोचो, कल्पना करो, जब आदम वो फल खा रहा था परमेश्वर वहां आ सकता था। No, लेकिन नहीं, you could have. He's God. देखो परमेश्वर है, वो कर सकता था। Can I take a new series on Adam and Eve? क्या मैं एक आदम और हवा पे एक नया श्रृंखला ले सकता हूँ क्या? Amen. You enjoy that, you know. Wonderful drama there. आपको इसका बहुत लुत्फ उठाओगे, वहाँ पे बहुत अद्भुत So ड्रामा है। the anointing is very important. तो अभिषेक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण Now है। I'm going to give you some proof from the Word of God that what happens when the Holy Ghost comes. और अब वचन के द्वारा मैं आपको कुछ प्रूफ देने वाला हूँ कि जब पवित्र आत्मा आता है तो क्या होता है। Yeah, Second Chronicles, everybody, verse 5, chapter 5, everyone, और दूसरा इतिहास इसका 5वां अध्याय and verse 13 and verse 14. और वचन 13 और वचन 14। Second Chronicles, chapter 5, verse 13 and 14. दूसरा इतिहास इसका 5वां अध्याय और वचन 13 और वचन Second Chronicles 5, 13 and 14. Can you read in Hindi, please, to save time? और दूसरे इतिहास का 5वां अध्याय वचन 13। तो जब तुतारियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुतारियां और झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे आवाज से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। Amen. Look at it, everybody. The cloud of glory appeared over there. और सभी जन यहाँ पर देखो कि वहाँ पर बादल छा गया। Yeah, महिमा का बादल. और वहाँ पर महिमा का बादल छा गया। Verse 14. और वचन 14 और महिमा के बादल के कारण Yeah. याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। Amen. Amen. Whenever the Holy Ghost comes, you will not be able to stand in His presence. जब कभी भी पवित्र आत्मा आएगा आप उसके उपस्थिति में खड़े नहीं रह पाओगे। Yeah. हाँ। Now anyone will say, why should I fall?
अब कोई कहेगा मुझे गिरना ही क्यों है? When you get a light current, electricity current, you fall. जब बिजली की करंट हमें लगती है तब उस वक्त हम गिरते हैं। Then what happens when the creator of electricity will touch you? तो जो बिजली का निर्माता है अगर वही आपको छुए तो क्या होगा? Amen. आमीन। That is that. Now you may say, अब आप कहोगे is falling necessary? क्या गिरना जरूरी है? See, it is not that God is in the business of falling people. देखो परमेश्वर इस व्यवसाय में नहीं कि वो लोगों को गिराए। Yeah, आ जाओ गिराओ तुमको. No, नहीं, उसका वो business नहीं है. But it is the property. When God touches, you will fall. लेकिन ये फितरत ही है। अगर परमेश्वर आपको छुएगा तो आप गिरोगे। Okay, my question. ठीक है, How many सवाल। people, how many people get wet when water falls on you? कितने लोग यहाँ पर हैं जो भीगते हैं जब पानी आप पर गिरता है? सगळे? भिजतो का नक्की? हा? कसं का? असं का? आंघोळ करताना भिजत नाही आपण? Anybody does not get wet by taking a bath? क्या क्या यहाँ पर ऐसा कोई है जब नहाते हो आप भीगते नहीं हो बिल्कुल भी? कोण आहे का इथं आंघोळ करताना भिजत नाही? Correct. सही है, सही पकड़े। Correct. Yeah. Now my point is अब मेरा मुद्दा ये है, that is the property of water. ये पानी का जो है और ये गुणधर्म है People of God. परमेश्वर के लोगों। So when God will touch you, तो जब परमेश्वर आपको छुएगा you may fall. आप शायद गिरोगे। Now, 2 Chronicles 7 verse 1 and verse 2. अब दूसरा इतिहास इसका 7वां अध्याय वचन 1 और वचन 2। Come on, read it. जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन से भर गया। Yeah. और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया। They just could not enter the temple of God. वो परमेश्वर के भवन में अंदर जा ही नहीं पाए। Why? क्यों? Because the glory of the Lord had filled the house. क्योंकि परमेश्वर की तेज ने उस घर को भर दिया था। Now someone will say, but that is the Old Testament. लेकिन आप कोई कहेगा ये तो पुराना करार है। Come on, let's read John 18 and verse 6, everybody. चलो आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना इसका 8वां अध्याय वचन 6। As soon as then as he had said unto them, I am he, they went backward and fell to the ground. उसके यह कहते ही कि मैं हूँ वे पीछे हटकर भूमि पर गिर गए। The people had come to arrest Jesus. वहाँ पर लोग जो है वो यीशु को पकड़ने आए थे And they were asking, who is Jesus? और वो पूछ रहे कि यीशु कौन है? So he said, I am he. तो वो कहता है कि मैं हूँ। The moment he said, I am he, और जैसे उसने कहा कि मैं हूँ, the glory of the Lord just hit them. परमेश्वर की जो तेज है वहाँ पर बस आ गया And they just couldn't stand in his presence. और वो बस उसकी उपस्थिति में खड़े नहीं रह पाए। If you read the book of Daniel, even he fell before the presence of God. और अगर दानियेल की किताब पढ़े तो वहाँ पर भी वो खुद परमेश्वर की उपस्थिति में गिर गया। Even John the apostle, when he got the revelation, he fell before God. और योना जो उसका शिष्य था जब उसे वो प्रकाशन मिला उस वक्त वो भी गिर पड़ा था। People of God, परमेश्वर के लोग whenever the Holy Ghost will touch you, जब कभी भी पवित्र आत्मा आपको छुएगा, if you read Exodus 19, अगर आप निर्गमन इसका 19वां अध्याय पढ़ोगे, from when the Lord came down on Mount Sinai, जब परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतर आया, the people began to shiver under the power of God. जो लोग नीचे थे वो परमेश्वर के सामर्थ में कांपने लगे। If not only the people, और लोग ही नहीं but even the whole mountain, लेकिन वो पर्वत भी people of God. परमेश्वर के लोगों। Come on, we are talking about the Creator, the living God Almighty. चलो हम निर्माता के बारे में बात कर रहे हैं जो जिंदा सामर्थी परमेश्वर है। Amen. आमेन। I don't know your experience with the Almighty God, देखो मुझे आपका अनुभव पता नहीं कि परमेश्वर के साथ क्या है, but I know I have been through this and I always experience this power over my body whenever I pray. लेकिन मुझे ये पता है और मैं इसमें से गुजर चुका हूँ और जब कभी भी मैं दुआ करता हूँ या अनुभव से मैं गुजरता हूँ, मेरे शरीर पर जो अनुभव है उसमें से मैं गुजरता हूँ। So today I'm going to ask the Lord to touch you. तो आज मैं परमेश्वर से मांगने वाला हूँ कि वो आपको छुए। And I want every one of you to ask the Lord genuinely, Lord, fill me with thyself. और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी जन
एकदम सच्चे रीति से परमेश्वर से ये मांगे कि और परमेश्वर से ये कहे कि परमेश्वर मुझे भर। Amen. Amen. How many of you are hungry for God? कितने लोग यहाँ पर परमेश्वर के लिए भूखे हैं? Amen. Now, before I go into this time of the anointing session, देखो इस अभिषेक के सत्र में जाने से पहले I just have a small request, देखो मेरी बस एक छोटी सी दरख्वास्त है। and the request is this: और दरख्वास्त यह है that when you're coming, to God, don't come looking at me. देखो जब आप परमेश्वर के पास आ रहे हो, मेरे पास देख परमेश्वर के पास मत आओ, Because the problem is, क्योंकि समस्या ये है God sees your heart. परमेश्वर आपके दिल को देखता है। Amen. Amen. He knows वो जानता है who genuinely needs His touch. यहाँ पर कौन है जो सच्ची रीति से उसके छूने को चाहता है। Amen. Also, और ये भी है without His presence, उसके उपस्थिति के बगैर you cannot live. आप जी नहीं सकते। So you need to have the presence of God. तो परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। Amen. The more you stay in the anointing, जितना ज्यादा आप अभिषेक में रहोगे, that much, I repeat once again, the more you stay in the anointing, मैं फिर से दोहराता हूँ, जितना ज्यादा वक्त आप अभिषेक में रहोगे, God will honor you with His presence. परमेश्वर जो है उसके खुद के उपस्थिति से आपको सम्मानित करेगा। The anointing is followed by the presence of God. देखो अभिषेक पहले आता है, उसके बाद उसके पीछे पीछे परमेश्वर की उपस्थिति। Amen. Amen. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों remember this. इसे याद रखो, It is a great privilege to have the presence of God with you. ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है हमारे जिंदगी में, अगर हमारे जिंदगी पर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। Moses prayed to God मूसा ने दुआ की थी that if your presence doesn't come with us, कि अगर आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं आएगी we will not leave this place. तो हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। Amen. Amen. Whatever you do, आप जो कुछ भी करते हो, getting married, getting a partner, getting anything in your life, शादी कर रहे हो, जोड़ीदार ढूंढ रहे हो, या फिर जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, taking up a job, या फिर एक नौकरी ढूंढ रहे हो या ले रहे हो, taking a crucial decision, या फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आप ले रहे हो, wait for God's presence to come there. वहीं पर रुके रहो जब तक परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आती। If His presence doesn't come, अगर उसकी उपस्थिति नहीं आती don't take a decision. तो फिर वो निर्णय लो मत। Yeah, wait upon God. परमेश्वर पे रुके रहो। There's no loss in waiting upon God. देखो परमेश्वर पे रुके रहना, इसमें कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं। Bible says that they that wait upon God shall renew their strength. Come on. बाइबल कहता है कि जो परमेश्वर की बात जोते हैं वो उनके सामर्थ्य नए करते हैं। Amen. So there is never a loss in waiting upon God. तो परमेश्वर पे रुके रहना, इसमें बिल्कुल भी और कभी भी नुकसान नहीं If है। you feel in your heart there is no one that loves you, अगर आपके दिल में आपको ऐसा महसूस होता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, you are going to experience today real love. तो फिर आज आप सच्चा प्यार जो है उसका अनुभव आप ले Many रहे of you are going to start crying when the Lord start touching you. और जब आप परमेश्वर आपको छूने लगेंगे, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो रोने लगेंगे। You'll feel like that someone has just begun pouring His love into your heart. आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि कोई तो उसका प्यार जो है आपके दिल में वो ढाल रहा है। Man has distrusted you many times, और इंसान ने आपका भरोसा बहुत बार तोड़ा है, but today लेकिन आज you're going to meet your heavenly Father. आप आपके स्वर्ग के पिता से मिलने वाले You're हैं, going to meet your Creator, आप आपके निर्माता से मिलने वाले and हैं, you're going to experience His love. और आप उसके प्यार का अनुभव आप लेने From वाले today onwards, हैं। और आज से आगे you will not have your prayers empty. आपके दुआ जो है वो खाली नहीं रहने वाला। Many people have this question and often wonder that why do you blow upon people? Why do you breathe upon people? देखो बहुत लोगों के सवाल है और अक्सर वो ये सवाल उठाते हैं कि लोगों पर फूका क्यों जाता है। Why, when you are praying for people to the anointing, why do you breathe upon them? जब आप लोगों के लिए दुआ करते हो और उनके ऊपर अभिषेक आए तो उस वक्त आप उन पर फूकते क्यों हो? John 20 verse 22, everybody. योना इसका 20वां अध्याय वचन 22। And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. जब कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा पालो। Amen. आमीन। The Lord Jesus breathed upon his disciples and released the anointing. और प्रभु यीशु मसीह ने उसके शिष्यों पर फूका और उनके ऊपर अभिषेक जो है वो उड़ेला था। And let me tell you, और मुझे आपको बताने दो, it works. वो काम करता है। Amen. Amen. The Holy Spirit is the breath of God. पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का सांस है। And when I blow, he blows through me. और जब मैं फूकता हूँ मेरे द्वारा वो फूकता है। What matters is
क्या मायने रखता है वो ये It है works. कि वो काम करता है। Amen. Amen. Now, what will you do of this anointing? ये जो अभिषेक आपने पाया है इसका आप करोगे क्या? Yeah, you'll go for picnics, आप पिकनिक को जाओगे, movies. पिक्चर देखने जाओगे। Yes, see that. I've got no problem with that. देखो आपको देख सकते हो उससे मुझे कोई समस्या नहीं। But when Bartimaeus was healed, लेकिन जब बातिमय चंगाई पा चुका, Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा "Go thy way." तेरे मार्ग से चले जा। You read the Bible carefully. बाइबल अगर आप ध्यान से पढ़ोगे He went behind Jesus. वो यीशु के पीछे चलने लगा। This anointing, this word you heard, ये अभिषेक जो आपको मिला है और ये जो वचन आपने सुना है is for you to grow in God. ये इसलिए है ताकि आप परमेश्वर में बढ़ो। Amen. Can I have the small child here, please? क्या वो जो छोटा बच्चा है वो क्या मैं यहाँ पर उसे ले आ सकते हो? The पहिला. अनुवाद। Yeah. Imagine here is a chocolate for you. कल्पना करो आपके लिए यहाँ पर चॉकलेट है। Amen. आमेन। You can't reach. देखो आप पहुँच नहीं सकते यहाँ पर। Amen. आमेन। So he's to go chocolate now. चॉकलेट के लिए आप Now, अब so what has actually happened with you today? तो आपके साथ आज क्या हुआ है? So what I've done is, or the Lord has done is rather, और परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया वो ये है, the chocolate is here. चॉकलेट यहाँ पर है, I've just given you the anointing and helped you take the chocolate. बस मैंने आपको अभिषेक दिया कि वो चॉकलेट आप खा लें। If your hand is down, अगर आपका हाथ नीचे है, no matter how much I lift you up, चाहे मैं आपको कितना भी ऊंचा उठाऊं, no point. कोई मायने ही नहीं रखता। Amen. Amen. Why? क्यों? You're not wanting to receive the chocolate. क्योंकि आप वो चॉकलेट पाना ही नहीं चाहते। Amen. आमेन। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, if you are going to pray, read the word, this anointing will help you. तो अगर आप दुआ करने वाले हो और परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहने वाले हो तो ये अभिषेक जो है वो आपको मदद करेगा। नहीं तो कुछ काम करेंगे। ऐसा आया वैसा चला गया। Amen. 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 God bless you all. Thank you very much. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। And next week I'm coming with a new. We have postponed that topic for marriage, wrong one for the future. But next week we'll come with some nice, awesome. We're going to see some awesome miracles from the Word of God. और अगले हफ्ते जो है हम कुछ तो एक अद्भुत श्रृंखला से हम जाएंगे और परमेश्वर ने जो चमत्कार किए थे, इस मसीह ने चमत्कार किए थे, उसके द्वारा हम देखने वाले हैं। और जो गलत जोड़ीदार ये जो विषय है वो हम बाद में के लिए रखते हैं। But लेकिन we're going to see how to receive miracles. लेकिन हम ये देखने वाले कि चमत्कार हम कैसे पा लें। Amen. So please don't miss it next week. तो कृपया कर इसे गवाए नहीं God अगले bless you हफ्ते। all.